गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके लेके आया हूँ कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड स्टॉक। तो देखते हैं कैसे क्या है स्टॉक, क्या क्या काम करता है, कैसे हैं इसके Q3 के रिजल्ट, सब इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए भी वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको अधिक से अधिक लेटेस्ट न्यूज़ और बढ़िया न्यूज़ आपको जल्दी जल्दी मिल सके। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम was incorporated on 15 September 1991 as a private limited company with the object of designing, developing, installing and maintaining software packages for domestic and international market. We are registered as 100% export oriented unit with software technology parks of India, Department of Electronics, Government of India, New Delhi. We developed and exported software packages from 1993 through 2003, namely MyMax for GUI applications, LearnX, a self-learning tool, ELX, Flickr, MathX, EZ Builder, Netgear, etc. with eDocs. We provide powerful, extensible, and affordable document management and imaging solutions to companies and organizations looking to reduce their dependence on paper distributed information for more efficiently and assist collaborations among users. Core competencies: प्रोडक्ट्स, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कवच बनाती कंपनी, लेवल क्रॉसिंग प्रोटेक्शंस, यार्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सर्विस, टर्न की प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ESS टेस्टिंग, ऑफशोर डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। भी कवच से रिलेटेड कंपनी बहुत शानदार ऑर्डर्स भी कंपनी के पास हैं। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। सर्विसेज और ट्रेन प्रोटेक्शन, कवच, हेडवे इम्प्रूवमेंट, मूविंग ब्लॉक, CBTSC, सिग्नलिंग, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग, लेवल क्रॉसिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड CCTV फॉर रेलवेज, वाटर सॉल्यूशंस, स्मार्ट वाटर सॉल्यूशंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस टेक्नोलॉजी provided companies specialize in integrating technology related to wireless front end, satellite communications, embedded systems, signal processing, network management, software development. User industries: railway safety system design and development, telecom and defense, water management solutions, turnkey project execution, embedded and IoT product design development services. Production capacity 100 coverage units per month, can scale up to 250 units per month. 10 level crossing gates per month, can scale up to 25 units per month. Ongoing projects: NCRA, North Central Railways, Prayagraj Division, section length 408.750. NCRB, North Central Railways, Prayagraj Division, section length 342 kilometers. SCR and ICF, TCAS, train collision anti system for Bidar to Parbhani, section 241 kilometers of SCR 39 on board loco kavach. For Vande Bharat trains, non kavach ABS implementation projects of SCR for route length 74 kilometers. International Egyptian Railways, the company has completed the installation and commissioning of 260 gates and has completed the preliminary handover to the customers. The final handover process is ongoing. Sri Lanka Airways, the company was executing an order for supply, installation, testing, commissioning and maintenance of 200 bell and light level crossing protection system. However, due to COVID-19 and the economic crisis in Sri Lanka, the company aims to exit the project through a conciliated dialogue with Sri Lanka Railways. Order book: TCH covers 3 projects of 561 crore, non-TCH 1 project of 40 crore. On April 23rd, 2020, Girl Coach Factory in Chennai awarded an additional order of 8.26 crore for supply, installation and commission of train collision avoidance system. Kavach. Also, ICF gave a fresh order of 5.77 crore on 4th मई 2024। अभी पिछले क्वार्टर में ही कंपनी को शानदार ऑर्डर 2000 करोड़ का भी मिला था।
recurring losses. Company has been generating continuous losses for the past many years. Revenue breakup: sale of products 84%, interest income on fixed deposit 13%, liability return of 2%. Geographical revenue split: overseas 74, domestic से 60, यानी कंपनी को for 74% जियोग्राफिकल रेवेन्यू में ओवरसीज से आता है और डोमेस्टिक्स में 26%. Overseas subsidiary and joint ventures: company has 100% only on subsidiary Avant Garde Infosystems in USA and one joint venture named Kernex TCS joint venture. In financial year 2000, the company approved to issue an allotted preferential basis 13 lakh share warrants for 52.39 crores to persons belonging to non-promoters group. कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स कवर से रिलेटेड स्टॉक भी और शानदार ऑर्डर्स कंपनी के पास हैं, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर डिमांड इसकी बनी हुई है और काफ़ी शानदार ऑर्डर और भी कंपनी को मिल सकते हैं और इसमें शानदार ग्रोथ देखी जा सकती है. इसके फाइनेंशियल का कंपनी का मार्केट के पे 1638 करोड़ का अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे के लेवल पे स्टॉक आ गया है. हालांकि स्टॉक भी काफ़ी अधिक है, 334 का. ROC है -21.1% की, ROE है -28% की, यानी पिछले कई क्वार्टर्स से कंपनी लॉस में थी, लेकिन अब पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है. फेस वैल्यू है 10 की, यानी कभी भी यहाँ से स्प्लिट दे सकता है स्टॉक. इंडस्ट्री पी है 50.9 का. प्लेस परसेंटेज भी है 8.79%. प्लेस स्टॉक शेयर्स कंपनी प्लेस्ड है. पिछले 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी शानदार रिटर्न निवेशकों को बना के दिया है और काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट नीचे डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस भी ऐसी ही है. पर अब चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे. दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की सेल 36.81 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 7.13 करोड़ का, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.31% का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल मात्र 8.31 करोड़ की और नेट प्रॉफिट -8.57 करोड़ का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -54.15% का था. तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स काफ़ी शानदार रूप से बढ़ी, तो नेट प्रॉफिट भी बेहतरीन रूप से बढ़ा है, -5.07. EPS से कंपनी का EPS 4.28 हो गया है, जब TTM बेसिस पे कंपनी की सेल्स 116 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल 20 करोड़ की ही थी और नेट प्रॉफिट -27 का था. यानी कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती गई है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कंपनी नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट जनरेट करने लगी है, जो कि पहले काफ़ी लॉस में चल रही थी. आने वाला टाइम काफ़ी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि काफ़ी कवच के ऑर्डर अब कंपनी को अलॉट हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कवच को लेकर काफ़ी ऑर्डर्स आने वाले हैं फ्यूचर, तो कंपनी को काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. तो यहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं. कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो पिछले TTM बेसिस 932% रूप से बढ़ी है, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 122% से इंक्रीज हुई है, जबकि स्टॉक प्राइस CAGR 5 ईयर का 118% का, 1 ईयर का 62% का. पिछले 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स निवेशकों को बना के दिए हैं. रिजर्व्स कंपनी के पास 100 करोड़ की है, जबकि बोरोइंग 32 करोड़ की है. प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखी जाए दिसंबर क्वार्टर में 29.08% की, जबकि FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 1.16% की कर ली और DIs ने भी अपनी होल्डिंग 0.04 से बढ़ाकर 0.73. गवर्नमेंट की भी इसमें होल्डिंग है 0.06% की. पब्लिक में देखा जाए तो HNIs के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है, तो ये स्टॉक आगे काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देने की संभावना है, इस पर ग्रोथ की संभावना दिखाई देती है. ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, आप इसके फंडामेंटल देख के इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं. कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. तो इस जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शिवा इन्वेस्ट 06. थैंक यू.